Hello and welcome to the Sen Wilfred online law classes. I am teaching you consumer protection laws, and today's topics we will discuss are judicial review and administrative remedies. Now, first topic is our judicial review. Now, what is judicial review? And it is an essential rule of law which provides powers to courts to declare a law or any order passed by government as constitutional or not. Means the power which has been provided to courts from by which they can decide whether the orders issued or the law passed by legislature is constitutional or not. Now the concept of judicial review came from USA in the case of Marbury versus Medicine in 1803. So the concept of judicial review came from USA, where it has been provided that court has power to decide a law or an order passed by any executive authorities or legislature, then in that case whether it is against the constitution or not. So this is the power which has been provided to courts. Now to further explain judicial review, let's say if the fundamental rights of a person are infringed then by the order passed by any public body, then in that case the court has power to declare that law as void as it is against the rights or interest of the people. तो उस केस में कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि वो जो लॉ उसने पास किया है या कोई ऑर्डर इशू किया है किसी पब्लिक अथॉरिटी ने विच इज अगेंस्ट द राइट ऑफ पीपल, तो इट कैन डिक्लेयर वॉइड. नाउ द जुडिशियल रिव्यू है वो तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है बिकॉज इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ एंड इन रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ. सो it has included three principles in judicial review. First is constitution is supreme, means constitution is a supreme law. Now the second is Supreme Court is ultimate in deciding constitutional matters. Supreme Court is the ultimate authority who will decide or who will take into consideration the matters which are in constitutional in nature. मतलब जो constitutional matters होंगे वो Supreme Court खुद decide करेगा and इसमें other courts interfere नहीं करेंगे. Judiciary must rule against any law which is in conflict with constitution. Means judiciary उन laws को आउट करेगा या उसके अगेंस्ट जजमेंट पास करेगा जो laws कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हैं. मीन्स जो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वो laws void हो जाएंगे, वो रूल आउट हो जाएंगे. ये जुडिशरी डिसाइड करेगा. जुडिशरी हैज़ द अल्टीमेट पावर फॉर द डिसीजन टू रिव्यू और चेक द that law or any order passed by any public bodies or executive authorities or legislature, if it is against the constitution then it is void. Now let's see why judicial review. Judicial review has been an important tool to citizens by which they can make sure that the public bodies or government authorities which have acted beyond their powers shall be prohibited. मीन्स उनको एक पावर दी गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज अपने पावर के बियॉन्ड कोई एक्शन लेती है दैन इन दैट केस विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, दैन इन दैट केस दे कैन मूव टू द कोर्ट अगेंस्ट दैट ऑर्डर और एनी एक्शन टेकन बाय द अथॉरिटीज़. तो उस केस में एक ये इंपॉर्टेंट टूल प्रोवाइड किया गया था पीपल को कि जिसके थ्रू कि अगर कोई एक्शन लिया गया है या लॉ कोई पास किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है या अपनी उनकी लिमिट्स के बाहर है, उनकी पावर के बाहर है अथॉरिटीज़ के, और वो अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द पीपल है, या देन इन दैट केस वो मूव कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि ये लॉ वॉइड, इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जाए. So this is the reason why judicial review became an important subject in deciding matters which are constitutional in nature. So the basic reason is the check and balance mechanism to maintain separation of powers. The basic object of judicial review is to maintain a check and balance between the other departments or like we can say
there is legislature, executive and judiciary. They are different authorities या organs. Then if they interfere with the other organs, then it is a infringement of the rights of the other authority. तो इस केस में वो जुडिशियल रिव्यू पावर देती है कि उस इंट्रोस्पेक्ट किया जाए कि कहाँ आपने अपनी पावर को एक्सीड किया और उनको उस पावर्स को जो उन्होंने एक्सीड किया वो वॉइड होंगी. मतलब यू कैन नॉट इंटरफेयर विद द पावर्स ऑफ अदर ऑर्गन्स. लाइक जुडिशरी ने कोई लाइक एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास किया है और उसमें जैसे एक लॉ पास किया है एक्सेसिव टैक्स का, जो कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है. देन इन दैट केस जो एक्सेसिव टैक्स जो इम्प्लीमेंट किया गया है इट इज़ अगेंस्ट द violation of constitution, because the constitution provide the taxes should be imposed which are reasonable and मतलब जो recover हो सके और reasonable amount पे होना चाहिए. It should not be excessive in nature. So this is the so in that case judicial review is a concept where the power of check and balance has been given to the courts to decide whether the law or any action taken by legislature or executive authorities are beyond their limits or infringing the rights, fundamental rights of the people, or if it violates the mandatory provisions of the constitution, then it is against the constitution and it should be removed or deleted. तो इस तरह से एक पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की कोर्ट्स को कि वो अपने मतलब ऑर्डर्स को, जजमेंट्स को और कोई लॉ को या ऑर्डर को वो रिव्यू कर सके और एक प्रॉपर डिसीजन पास कर सके उस केस में. नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू विद रेस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. Here we have seen the meaning of judicial review, why it is necessary and reason behind bringing the judicial review concept. तो इसका एक बेसिक हमने ओवरव्यू देखा है जुडिशियल रिव्यू को. Now we will move on to judicial review with respect to Consumer Protection Act. So क्या था Consumer Protection Act 1986 था. वो पावर नहीं देता था किसी भी अथॉरिटी फोरम को या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन को कि वो अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके या कोई अपने उन्होंने जजमेंट पास किए हैं उनका रिव्यू कर सके. तो उस केस में क्या होता था, जो स्टेट जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम का कोई मैटर है उसके अगेंस्ट में मतलब किसी पार्टी के अगेंस्ट में डिसाइड हुआ है या स्टेट कमीशन को मैटर जिसमें पार्टी के अगेंस्ट डिसाइड हुआ है, नाउ दे हैव नो पावर टू रिव्यू द ऑर्डर्स. तो उस केस में द पार्टी हैज़ द ओनली पावर और ही हैज़ द ओनली रेमेडी टू फाइल एन अपील और रिविजन इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम और द स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. मतलब वो अपील या फिर रिविजन के लिए ही अप्लाई कर सकती थी पार्टीज उस केस में. तो एंड इन द केस ऑफ नेशनल कमीशन के केस में क्या था, अगर नेशनल कमीशन का कोई ऑर्डर पास हुआ है और वो कोई पार्टी सेट असाइड करवाना चाहती है या फिर उसको मतलब हटाना चाहती है या मतलब उसका रिवर्सल चाहती है, तो उस केस में पार्टीज को कोर्ट्स में मूव होना पड़ता था, मतलब कोर्ट्स जाना पड़ता था उस मैटर को सेट असाइड करवाने के लिए और उस ऑर्डर को रिवर्स करवाने के लिए. तो इसलिए देयर वाज नो पावर ऑफ रिव्यू given to the district forum, state commission और national commission. ये प्रायर टू द अमेंडमेंट ऑफ 2002 से पहले का सिनेरियो है कि भाई जब 2002 का अमेंडमेंट नहीं आया था उस केस में, जब 1986 का एक्ट उसमें था, फ्लो में था, तो उस केस में जो मैटर्स आए थे रिव्यू के लिए, मतलब वो रिव्यू नहीं की पावर नहीं गई थी स्पेसिफिकली इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. तो इस वजह से कोर्ट को मतलब पीपल के पास जो पार्टीज थी उनके पास दो ही रेमेडीज थी, या तो अपील या फिर रिविजन. देयर वाज नो पावर ऑफ review given to the any forums or commissions. So now we will see the scenario after the amendment of 2002 act. मतलब जब अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 आया उसके बाद क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में. Now let's see. The Amendment Act of 2002 provided power of judicial review to the National Commission solely. Means जो रिव्यू की पावर दी गई थी वो सिर्फ नेशनल कमीशन को दी गई थी. मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन आर स्टिल आउट ऑफ द परव्यू
ऑफ दिस जुडिशियल रिव्यू, मतलब दे कैन नॉट रिव्यू देयर ऑर्डर्स और जजमेंट पास बाय देम। तो जो ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट फोरम के या फिर कोई स्टेट कमीशन के कोई ऑर्डर्स को अगर रिव्यू करा, उनका रिवर्सल चाहते थे या सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स का अगर चाहती थी पार्टीज, तो उस केस में उन पार्टीज को नेशनल कमीशन में मूव करना पड़ता था ताकि उन ऑर्डर्स का रिवर्सल हो सके या उनको सेट असाइड किया जा सके। तो इस केस में क्या हुआ, लोगों कंज्यूमर्स को हर्डल्स होने लगे, दे फेस लीगल हर्डल्स, कि उनको प्रॉब्लम होने लगी कि अगर उनको कोई भी ऑर्डर है, एक्स पार्टी ऑर्डर है, उसको सेट असाइड कराना है, देन दे हैव टू डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेशनल कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन डिडंट हैव दैट पावर। तो इसलिए इस केस में फिर वी विल सी द टू प्रोविजन प्रोवाइडेड इन 2002 अमेंडमेंट एक्ट, जिससे जुडिशियल पावर की, जुडिशियल रिव्यू की पावर नेशनल कमीशन में प्रोवाइड करी गई। सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 review of orders by national commission where error is apparent on the face of record means कोई अगर कोई ऑर्डर जो पास किया गया है कोई किसी भी अथॉरिटी द्वारा और वो उस पर जो एरर है वो एपरेंट है, मतलब जो सामने से दिखती है कि हाँ वहाँ गलती हुई है, इरेगुलरिटी है, या जो अथॉरिटी है वो अपनी मतलब कॉम्पिटेंस से बाहर उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं, देन इन दैट केस नेशनल कमीशन हैज़ पावर टू मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके, उसको मतलब वैलिड वॉइड ठहरा सके। नेशनल कमीशन को वो पावर दी गई थी। नाउ द लेटर इज 22A, पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। नाउ इस केस में क्या था, नेशनल कमीशन को पास पावर थी कि कोई भी ऑर्डर जो इसने पास किया है एक्स पार्टी, देन कंप्लेनेंट और द अदर पार्टी whoever wants to set aside that order, then in that case that party has to move to the national commission only where it can set aside that order or reverse that order. तो उस केस में only the sole power was given to national commission and state commission or district forum are still out of that purview of judicial power, judicial review power. Now let's move on to the present view Act of 2019. Now what is the present scenario, what is the present situation in Consumer Protection Act regarding the judicial review power? Now as you all know, the Consumer Protection Act 2019 came into existence in 2019. So in that the provision for judicial review has been provided to all authorities, like to district forum, to state commission और to national commission. तीनों अथॉरिटीज़ को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। लाइक फर्स्ट इज सेक्शन 40 रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम रिव्यू कर सकती है अपने मैटर को। सेक्शन 50 में रिव्यू बाय स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन रिव्यू कर सकती है कोई भी ऑर्डर या लॉ पास किया गया है जो उसके द्वारा। सेक्शन 60 रिव्यू बाय नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन को भी पावर दी गई है इसमें कि वो भी अपने ऑर्डर्स और जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है। तो बेसिकली इस 2019 में तीनों अथॉरिटीज़ को इंक्लूड किया गया है बजाय सिंगल अथॉरिटी के, मतलब तीनों कमीशंस को इसमें पावर दी गई थी कि अपने ऑर्डर्स और मैटर्स को जो भी उन्होंने पास किए ऑर्डर्स और लॉज को उनको वो रिव्यू कर सके। तो बेसिकली क्या रीजंस होते हैं रिव्यू के, कोई इरेगुलरिटी इन जजमेंट या फिर दे हैव एक्टेड बियॉन्ड देयर ज्यूरिडिक्शन और इज एनी देयर इरेगुलरिटी और मिस्टेक ऑन देयर पार्ट फॉर पासिंग जजमेंट या कंपनसेशन अवार्ड। तो इस केसेस में जो मैटर्स हैं इस केस में वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि देयर वाज एन एरर ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड and there is irregularity in passing the judgment or there has been they have acted beyond their powers of jurisdiction, मतलब उन्होंने अपनी jurisdiction से बाहर के मैटर्स को डील किया है। तो इस केस में इनको पावर्स दी गई थी। तो now what is the position? Now, as per the Consumer Protection Act 1986, only the National Commission has the power which has been provided after the Amendment Act of 2002. 2002 के बाद वो नेशनल कमीशन को पावर दी गई थी जुडिशियल रिव्यू की, मीन्स उन्हें मैटर्स को रिव्यू कर सके। उससे पहले ऐसी पोजीशन नहीं थी, कोई भी फॉरम या कमीशन अपने जो जजमेंट या लॉज जो उन्होंने पास किए, ऑर्डर पास किए, उनका रिव्यू नहीं कर सकता था। नाउ आफ्टर 2002 अमेंडमेंट एक्ट तो उसमें नेशनल कमीशन को प्रोवाइड किया गया एंड नाउ द प्रेजेंट सिचुएशन इज कि तीनों फॉरम्स, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, तीनों को पावर्स दी गई है वो अपने ऑर्डर्स को और कोई एक्स पार्टी ऑर्डर्स को सेट असाइड या रिवर्स कर सकते हैं। तो दिस इज द
This is whole about judicial review with respect to Consumer Protection Act. Now let's move on to the second topic, administrative remedies. Now what are the administrative remedies? Administrative remedies are the remedies which are provided by the commission or the board itself to the people, and let's see what are these administrative remedies in the Consumer Protection Act 1986, which has been provided to consumers in case of any deficiency or defect with regard to any goods or services. Now first is removal of defect. Now if any product has a defect, then like my iPhone has a, when it came, मुझे एक बॉक्स पैक में पार्सल होके घर आया, मैंने उसको खोल के देखा, उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी. तो मतलब अब मुझे मेरे तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं थी, मैंने उसमें कोई अपना कोई पर्सनल यूज़ नहीं किया. उससे पहले वो स्क्रीन मेरे पास टूटी हुई थी, पार्सल में उसके हुई थी. उस बेसिस पे सर्विस प्रोवाइडर ने जो मिस्टेक करी, जो उसने अपने इरेगुलरिटी करी अपने एक्ट पे, उसने प्रॉपर केयर नहीं कर रखी, रीजनेबल केयर जो रिक्वायर्ड थी प्रॉपर्टी को सेंड करने की या प्रोडक्ट को सेंड करने की, वो उसने रीजनेबली एक्ट नहीं किया. तो उस केस में जो अथॉरिटी है या जो कमीशन है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि आप ये डिफेक्ट को रिमूव करके दीजिए, या तो आप नया प्रोडक्ट दीजिए, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, और इट मे ऑर्डर दैट आप स्क्रीन चेंज करके या फिर इसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट आप मुझे प्रोवाइड कराइए. दिस इज द रिमूवल ऑफ डिफेक्ट. या लाइक कोई कार है, मैन्युफैक्चरिंग कार है, कार है आपने खरीदी, परचेज करी, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया है. अब आपने तो कार एक रीजनेबल रेशनल मैन के हिसाब से देख के सब कुछ खरीदा था, पर आपको मशीनरी और हर चीज़ का नॉलेज हो जरूरी नहीं है कंज्यूमर को. तो उस केस में जो कमीशन है वो ऑर्डर कर सकता है कि जो भी कोई डिफेक्ट है, लाइक इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द टोयोटा कार का एग्जाम्पल यूज़ किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि उनके एयर बैग्स में कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से उन्होंने अराउंड 23,000 कार्स को कॉल बैक किया था मार्केट से. तो उस केस में उस डिफेक्ट को रिमूव करके वो कार्स वापस प्रोवाइड करी गई कंज्यूमर्स को. तो दिस इज द केस ऑफ रिमूवल ऑफ डिफेक्ट. नाउ द सेकेंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स. नाउ एज आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन कि उसकी स्क्रीन टूटी थी, तो मुझे वो रिप्लेस करके वो प्रोडक्ट दिया जाए. जैसे मेरे पास कोई मैंने अब वॉशिंग मशीन खरीदी, उसका एक वायर था वो थोड़ा सा बर्न था, जिसकी वजह से रनिंग इफेक्ट हो रही थी. तो उस केस में वो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट करके देंगे कि बिकॉज इट इज़ हजार्डस टू लाइफ, वो लाइफ के अगेंस्ट भी, मतलब सेफ्टी के पर्पज से वो सही भी नहीं था. तो उसको रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स, उस जो दिया है उसमें जो डिफेक्ट है उसके बदले दूसरा. रिफंड ऑफ प्राइस, लाइक आपने प्रोडक्ट खरीदा कोई, अब उसमें कोई डिफेक्ट निकला, तो उस केस में जो कमीशन है वो ऑर्डर कर सकती है कि नहीं, आप इसके बदले उन कंज्यूमर्स को आप पैसा पे करेंगे, जो उनका अमाउंट है वो पे करेंगे. देन इट इज़ द रिफंड ऑफ द प्राइस. जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 200 रुपये का, उसमें कोई डिफेक्ट था, आप कंज्यूमर फोरम गए कि इसमें ये डिफेक्ट है जिसकी वजह से मैं इसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. तो इन दैट केस वो जो कमीशन है वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट रिफंड ऑफ द केस और द रिफंड ऑफ द प्राइस विल बी द बेस्ट ऑप्शन इन सच केस. तो उस केस में कमीशन अवॉर्ड करेगा कि रिफंड ऑफ द प्राइस टू द कंज्यूमर. नाउ द सेकेंड इज अवार्ड ऑफ कंपनसेशन. लाइक आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जिसकी वजह से आपको कोई लॉस या डैमेज हुई है या इंजरी कॉज हुई है, देन इन दैट केस जो कमीशन है या बोर्ड है, दे विल अवॉर्ड अ कंपनसेशन टू द कंज्यूमर्स फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू दैम. रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस. अब कोई डेफिशिएंसी हुई है सर्विसेज में तो उसका रिमूवल ऑर्डर कर सकता है. लाइक मेरा एसी ख़राब हो गया था, मैंने सर्विस करने वाले को बुलाया, उसने ठीक किया, पर उसने प्रॉपर केयर से उसको ठीक नहीं करा था, जिसके बाद 2 दिन में फिर वो ख़राब हो गया. देन आई मूव टू डिस्ट्रिक्ट फोरम कि मेरी देयर वाज अ लैक ऑफ सर्विस रीजनेबल केयर इन सर्विस, कि उन्होंने रीजनेबल केयर से सर्विस प्रॉपर तरीके से नहीं करी, जिसकी वजह से मेरा एसी वापस ख़राब हुआ और जो मैंने पेमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सर्विसेज नहीं दी मुझे. देन इन दैट केस तो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो ऑर्डर कर सकता है कि उस सर्विस प्रोवाइडर को, उस सर्विस एजेंट को, कि वो वापस आके उस डिफेक्ट को रिमूव करे जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है. दिस इज द रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस. नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर. Discontinuance of unfair
अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स इसमें कमीशन ये और बोर्ड कैन ऑर्डर और मे ऑर्डर फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। लाइक आपने सुना होगा पहले एक ऑर्डर एक आया था बीच में एक जिसमें ये हुआ था कि गैस जो एजेंसी है वो आप जब उनसे गैस कनेक्शन लेंगे तो आपको गैस स्टोव लेना भी ज़रूरी है, अदरवाइज आपको गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इट इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप कंज्यूमर को बाउंड कर रहे हो उसका वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो वो चाहता नहीं है या फिर वो खरीदना नहीं चाहता है। तो दिस इज बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच वॉज इन्फ्रिंजिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा था और वो अफेक्ट कर रहा था कंज्यूमर्स को। तो इस केस में इसको एज ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना और उसे रिमूव डिसकंटिन्यू किया गया मार्केट से। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डस गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट जो हैजार्डस है लाइफ एंड सेफ्टी को लेके किसी पर्सन या इंडिविजुअल की, तो उस गेट्स की उस प्रॉपर्टी या गुड्स की सेल को रोकना कमीशन ऑर्डर पास कर सकता है। विड्रॉल ऑफ हैजार्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, आप कोई कंप्लेंट आई कि ये वायर ISI मार्क के अप टू द मार्क नहीं है, जैसे आपने सुना है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो ISI मार्क होना ज़रूरी है कि उनकी क्वालिटी और उनकी जो जैसे मटेरियल है जो यूज़ किया वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और वो एज़ पर द अप टू द मार्क्स ऑफ ISI होना चाहिए। और उस रिगार्ड्स में अगर वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है और इट विल बी अफेक्टिंग द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल, देन इन दैट केस द बोर्ड और कमीशन में ऑर्डर कि विड्रॉ कर सके ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट से जो अप टू द मार्क्स नहीं है ISI के और विच आर हैजार्डस टू द लाइफ सेफ्टी ऑफ द पीपल और कंज्यूमर्स के मतलब हेल्थ को अफेक्ट करेगा। उस केसेस में कमीशन या बोर्ड ऑर्डर कर सकता है उन प्रोडक्ट्स को मार्केट से रिमूव करने का। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, और किसी केस में ऐसा लगता है कि बोर्ड और कमीशन को कि रीजनेबल कॉस्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर, कि उसको वो कॉस्ट ही इज एंटाइटल्ड टू दैट कॉस्ट, देन इन दैट केस द बोर्ड और कमीशन में अवॉर्ड एडिक्वेट कॉस्ट टू दैट कंज्यूमर। तो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.